آزاد کشمیر کے حلقے ال15 باغ ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سردار ضیاء القمر نے 5270 ووٹوں کی برتری سے نون لیگ کے مشتاق منہاس کو شکست دی ہے۔ آصف علی زرداری نے اپنے امیدوار کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی پاکستان کو بچایا ہے، اب بھی ہم اسے سنواریں گے۔ باغ کے ضمنی الیکشن میں تیر چل گیا، ضیاء القمر کی جیت پر حامیوں کا جشن۔ ضمنی الیکشن کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار ضیاء القمر نے 25,755 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے امیدوار مشتاق منہاس رہے، جنہوں نے 20,485 ووٹ۔ سال 2021 کے عام انتخابات میں اس نشست پر جیتنے والی جماعت تحریک انصاف کے امیدوار کرنل ریٹائرڈ راجہ ضمیر 4,924 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ یہ نشست سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی عدالت سے نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ حلقے میں مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ 50% سے زائد رہا۔ الیکشن کے نتائج پر سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی کراچی سے کشمیر تک ایک زندہ حقیقت اور وفاق کی علامت ہے۔ نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ شرپسندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر کل یہ سیاستدانوں کے گھروں تک بھی پہنچیں گے۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ اعلان جہانگیر خان ترین نے عبدالعلیم خان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کیا۔ عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، عامر کیانی، سردار تنویر الیاس، فردوس عاشقاوان، مراد راز سمیت پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی بھی موجود تھے۔ نئی جماعت کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین نے کہا کہ تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جذبے کے تحت پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، اس کو مضبوط سیاسی قوت بنانے کے لیے دن رات جدوجہد کی۔ پی ٹی آئی احتساب کا نعرہ لگا کر وجود میں آئی تھی۔ بدقسمتی سے معاملات ویسے نہ چل سکے جیسے ہم چاہتے تھے، لوگ ہم سے بد دل ہونا شروع ہو گئے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات نے پاکستانی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دل کی گہرائی سے، کہ اگر ہم نے 9 مئی کے مطلوبہ سازوں اور شرپسندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ بھی قابل قبول سمجھا جائے گا، اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ عبدالعلیم خان بولے 9 مئی کے بعد لوگ فکر مند تھے، تمام دوستوں سے رابطہ کر کے مشترکہ جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، اس انتشار کو ختم کر کے مستحکم پاکستان بنانا ہے۔ پاکستان کو انتشار سے دور کرنا ہے۔ پاکستان کے انتشار نے ملک کو پیچھے کی طرف تیزی سے گرا رہا ہے۔ یہ انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ انتشار پاکستان کے لیے، پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بری خبر ہے، اور ہم نے اس انتشار کو ختم کرنا ہے۔ تقریب میں شریک تمام رہنماؤں نے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کا اعلان کیا۔ اور اب بات کریں گے بجٹ کی۔ جی ڈی پی کا 7.7% مالیاتی خسارے کے ساتھ تیار، قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 7300 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ دفاع کے لیے 1800 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے جائیں گے، جبکہ ایف پی آر کے لیے 9200 ارب کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے 6500 ارب روپے سے زائد مالیاتی خسارے کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں 20% اور پینشنز میں 15% اضافے کی تجویز۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب روپے مختص، 700 ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح مزید بڑھائے جانے کا امکان۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ بجٹ جی ڈی پی کا 7.7% مالیاتی خسارہ کے ساتھ تیار کیا گیا۔ آئندہ مالی سال میں ملکی آمدن کا تخمینہ 9200 ارب ایف بی آر ٹیکس محصولات اور نان ٹیکس آمدن کے لیے 2800 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے، جس میں 55% سے زائد صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ وفاق آئندہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر 950 ارب روپے خرچ کرے گا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 200 ارب کے منصوبے شروع ہوں گے۔ صوبے ترقیاتی منصوبوں پر 1559 ارب روپے خرچ کریں گے۔ ایف بی آر پراپرٹی سیکٹر کمپنیوں کے منافع پر نئے ٹیکسز عائد کرے گا۔ بجٹ میں 18% سیلز ٹیکس کی سٹینڈرڈ شرح عائد کی جائے گی، جبکہ لگژری آئٹمز پر 25% سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ میں دفاع کے لیے 1800 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے لیے 13 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 59 ارب روپے سے زائد کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا جائے گا۔ 1000 سی سی سے بڑی امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹیز کی شرح میں اضافہ کی تجویز ہے، جبکہ بجٹ میں سولر پینلز اور سولر انرجی پر سیلز ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔
रवा माली साल GDP ग्रोथ 0.29% रही। बरामदात में 12.1% कमी रिकॉर्ड की गई। मईशत का हजम 84,658 अरब रुपए तक पहुंच गया। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया। मुदस्सिर अली राना की रिपोर्ट देखिए। बरामदात में कमी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी रिकॉर्ड। GDP ग्रोथ सिर्फ 0.29% रही। फीकस आमदन कम होकर $1,568 पर आ गई। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे जारी। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक माली साल 2022-23 में ज़राई तरक्की 1.55%, सर्विसेज के शोबे में तरक्की की शरह 1.86% रही। रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान महंगाई की शरह 29.2%, जबकि सन्नती तरक्की की शरह मनफी 2.94% रही। रवा माली साल के 10 माह में मालियाती खसारा GDP का 4.6%, मालियाती खसारे का हुजम 3,929 अरब रुपए रहा। जारी खातों का खसारा 3 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल के 11 माह में तिजारती खसारा 25 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा। 10 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी 23% कमी के बाद 1 अरब 17 करोड़ डॉलर रही। गंदुम की पैदावार गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 5.4% जायद रही। गन्ने की पैदावार गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 2.8% इजाफे के साथ 9 करोड़ 11 लाख टन रही। कपास की पैदावार 41% कमी के साथ 49 लाख बेल्स, चावल की पैदावार 21% कमी के साथ 73 लाख टन रही। लाइव स्टॉक में 3.78% की तरक्की, जंगलात में 3.93% इजाफा हुआ। रवां साल 7 लाख टैक्स दहिंदगान के हदफ के मुकाबले में 9,12,000 नए टैक्स दहिंदगान रजिस्टर्ड हुए। करंट अकाउंट खसारे में 76% कमी हुई। जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारे में 40.4% और दरामदात में 29.2% कमी हुई। मौजूदा माली साल में मुआशी तरक्की 5% हदफ के मुकाबले में 0.29% रही। बेशतर शोबे अपने अहदाफ से बहुत पीछे रहे। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इक्तिसादी सर्वे की लॉन्चिंग पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुज़श्ता माली साल में बेशतर मुआशी अहदाफ अधूरे रह गए। सनती शोबे में बड़ी गिरावट। तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई भी काबू न आई। इक्तिसादी सर्वे की लॉन्चिंग के मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मुआशी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर था, तहाँ मुआशी ग्रोथ 0.29% रही। सनती शोबे की तरक्की मनफी 2.94% रही। ज़राई शोबे ने 1.55% और खिदमात के शोबे ने 0.86% के हिसाब से तरक्की की। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के रिस्पेक्टिवली 1.55, 2.94, 0.86 इसमें एक नेगेटिव है। ये फ्लड्स भी इसमें आए, इसमें जैसे मैंने किया ग्लोबल प्रेशर भी आया, इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि 0.29 जो है वो एक रियलिस्टिक अचीवमेंट है। इससे बेहतर शायद ना हो सकती। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सैलाब, आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी और सख्त मौशी फैसले महंगाई में इजाफे का सबब बने। रही सही कसर सियासी अदम इस्तेकाम और रुपए की गिरती कदर ने पूरी कर दी। आलमी मार्केट में अजनास के बढ़ते नरखों ने भी बड़ा असर डाला। जो हायर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस मैंने जिक्र किया, क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, पल्सेस, global supply disruptions, damages of major and the minor crops due to flood, currency depreciation, administrative price adjustment, political machinery are the major factors responsible for the high inflation. रिपोर्ट के मुताबिक 10 माह में 6,210 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे किए गए। टैक्स वसूली हदफ से कम, मगर गुज़श्ता साल की निस्बत 16.1% इजाफा देखने में आया। मालियाती खसारा GDP का 4.6% रहा। करंट अकाउंट खसारे में 76% कमी आई। हुकूमत ने आइंदा बजट में IMF की शर्त पर प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया। प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइल्स के लेन देन पर इजाफी टैक्स आयद होगा। दूसरी जानिब टैक्स आयद किए जाने के फैसले पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अवैस अब्बासी की रिपोर्ट। हुकूमत का IMF की शर्त पर आइंदा बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर पर मजीद टैक्स आयद करने का फैसला। रियल एस्टेट सेक्टर की जानिब से फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इक़दाम को तामीराती शोबे के लिए ज़हर कातिल करार दे दिया। गुज़श्ता माली साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर इजाफी टैक्स नाफिज करने से इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हुई है। मजीद टैक्स लगाया गया तो इंडस्ट्री का पहिया जाम हो जाएगा। ये जो बजट आ रहा है तो इस बजट के हवाले से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिल नहीं रही, और उसमें भी जिस तरीके से इसको हमारे जो प्रपोजल्स थे, अगर उन प्रपोजल्स को इस बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट ना किया गया तो हमारी मजबूरी होगी कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एफिलिएटेड तमाम इंडस्ट्री,
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, इन तमाम लोगों को लेके हम इस एहतजाज करें। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बैरून मुल्क से भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होती है। नए टैक्सेस लगे तो ना सिर्फ बैरून मुल्क से सरमायाकारी रुक जाएगी बल्कि अंदरून मुल्क से भी सरमायाकार पैसा बाहर ले जाएंगे। अगर रिलीफ देते हैं तो फ़ायदा डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी को ही होगा। पाकिस्तान के अंदर देखें फ़िलहाल हमें डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर बैठे हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या हमारे पास फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर आएगा तो डेफिनेटली हमारी इकॉनमी भी ठीक होगी। अगर तो ये मज़ीद टैक्सेस लगा देते हैं तो आपके जो भी यहाँ पे जो वेल स्टेबल भी बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। टैक्स जब से बढ़ा रहे हैं तो रियल एस्टेट में हमारे बिज़नेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है, पहले अगर बिज़नेस हम लोग करते थे तो हमारी जो सी परसेंटेज थी फाइल्स की, जो सी हम लोग सोसाइटीज़ वगैरह में प्लॉट्स वगैरह बेचते थे, 70 to 80% हमारी चीज़ें सेल होती थी। ठीक है, एक मंथ में। अब वही परसेंटेज आपकी आ गई है 20-30 के ऊपर। ठीक है, और दिन ब दिन रियल एस्टेट का बिजनेस थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है। रियल एस्टेट नुमाइंदों का कहना है कि अगर बजट में मजीद इजाफी बोझ डाला गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी का केस है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की बादस गिरफ्तारी, दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत आज तक मुलतवी। परवेज़ इलाही को करप्शन के एक मुकदमे से बरी करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। नुमान नूर की रिपोर्ट। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा अवान ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। तफ्तीशी ऑफिसर मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत पेश करने में फिर नाकाम रहा। प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब अदालत में जमा करवाया। जवाब में बताया गया कि तफ्तीशी ऑफिसर कोयटा गया है और रिकॉर्ड उसके पास है। प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी ऑफिसर की कोयटा रवानगी की टिकट की कॉपी अदालत में पेश की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डीजी एंटी करप्शन को जाती हैसियत में तलब कर लेते हैं। परवेज़ इलाही की जानिब से उनके वकील अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज़ इलाही को 3 बार स्टंट डाला जा चुका है। परवेज़ इलाही को अद्वियात और परहेजी खाना फराहम नहीं करने दिया जा रहा, उनकी जान को खतरा है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किए जाने पर समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। उधर सेशन अदालत में परवेज़ इलाही को गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज साइमा रियासत ने तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने परवेज़ इलाही को करप्शन के एक मुकदमे से बरी करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। निगरान पंजाब हुकूमत ने डॉक्टरों की हिफाजत के लिए अस्पताल फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर्स की दीगर मुतालबात भी पूरे करने की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म कर दी गई। सूबाई वज़रा ने यंग डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरात में तमाम मामला तय कर लिए। YDA के नुमाइंदों ने निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरह अस्पताल सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। हेल्थ केयर प्रोटेक्शन बिल मंजूर कराया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर डॉक्टर सुलेमान और डॉक्टर असगर ने मुतालबात मंजूर होने पर हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। और अब कारोबार की दुनिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 42,000 की सतह बरकरार न रख सका। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी और ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हुआ। फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपए कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से हज़स की फरोख्त का रुझान रहा। इख्तिताम पर मार्केट 456 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,686 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे कमी के बाद 286 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए इजाफे से 303 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी और सियासी सूरत हाल के असरात स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर पर नजर आ रहे हैं। हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने की जरूरत है। आज फी तोला सोने की कीमत 2300 रुपए कमी के बाद 2,28,100 रुपए हो गई, जबकि आलमी मंडी में सोना $24 इजाफे से $1964 फी ऑन्स का हो गया। अब आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और फूड अथॉरिटी के इश्तराक से वर्ल्ड फूड डे के हवाले से सेमिनार और आगाही वॉक मुनक़िद हुई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर की खुसूसी शिरकत। तलबा की जानिब से स्टॉल्स भी सजाए गए।
मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल पंजाब फूड सेफ्टी के हवाले से पेश वर्ल्ड फूड डे के हवाले से यूसीपी और पंजाब फूड अथॉरिटी के इश्तिराक से सेमिनार और आगाही वॉक उन्वान फूड स्टैंडर्ड जान बचाता है रखा गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर की खुसूसी शिरकत, यूसीपी के प्रो रेक्टर नसर इकराम, डॉक्टर हाफिज कैसर अब्बास, बदर मुनीर और तलबा शरीक हुए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के माबैन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के मुकाबले हुए। तलबा की जानिब से 42 स्टॉल्स भी लगाए गए। फूड अथॉरिटी ने स्टॉल्स पर फूड का मुआयना किया और तलबा की हौसला अफजाई की। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने ऐसा इक़दाम उठाया, हिफ्ज़ान सेहत अव्वलीन तरजीह है, हमें सेहतमंद खुराक खानी चाहिए। आप लोग फूड अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी कोशिश करें कि हेल्दी फूड खाएं। आपकी हेल्दी फूड चॉइसेस होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपका जो बीमार कम से कम पड़े आप और हेल्दी फूड खाएं। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना था कि खुराक का आलमी दिन मनाने का मकसद फूड सेफ्टी को यकीनी बनाना है। फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। खुशी है कि फूड अथॉरिटी के साथ साथ यूनिवर्सिटियाँ भी पेश हैं। फूड सेफ्टी डे डेफिनेटली इज एन इम्पोर्टेंट डे टू सेलिब्रेट एंड टू कमेमोरेट व्हाट वी आर going forward with, what the industry should be doing, what our people should be expecting the industry to be doing, and getting the best possible end results for our consumers. So good to see that this university is also taking the lead in it and celebrating the World Food Safety Day along with the Punjab Food Authority administration. सेमिनार के इख्तिताम पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। रोजगार और टैक्स देने वाले सनती शोबे को इंतहाई मंदी का सामना है। सनत के लिए बजट में क्या होना चाहिए, इस बारे लाहौर के सनतकार क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, जाहिद आबिद अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। सनती शोबे का पहिया रवानदवा रहता है तो मईशत फलती फूलती है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क की सनती तरक्की की शरह तनज़्ज़ुली का शिकार है। सालाना बुनियाद पर सनती तरक्की की शरह में 11% कमी देखी गई है। अमूमी तौर पर सालाना शरह तरक्की औसतन 4% देखी जाती रही है। सनती शोबा तवक्को करता है कि बजट में बरामदत बढ़ाने के लिए काम होगा, जबकि सनती शोबे को बेहतर माहौल देना तरजीह होनी चाहिए। मैं इंसेंटिव देने का कायल नहीं, मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट दें इंडस्ट्री को, टैक्स को, कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें काम करते। यहाँ उल्टा हिसाब हो गया है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी पेमेंट बाहर से आगे 6 दिन लेट होती है तो आपको जुर्माना पड़ जाता है। साल भर में मुतअद्दिद सनती यूनिट्स बंद हो चुके हैं, जिसमें डॉलर की अदम दस्तयाबी से खाम माल की किल्लत का भी बड़ा हिस्सा है। लोग बेरोजगार हुए हैं। सनती शोबे से वाबस्ता अफराद का ख्याल है कि मुल्की वसाइल की बड़ी वजह आमदनी कम और अखराजात ज्यादा होना है। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंडस्ट्री वायबल ही नहीं रही। फिर ये कि वो इंटरेस्ट हाई होने की वजह से इंडस्ट्री एक डिफ़िकल्ट फेज़ में से गुजर रही है। रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से गुजर रही है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से एक फेज़ में से गुजर रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट होते हैं। माहिरीन के मुताबिक महंगाई अपनी जगह, लेकिन कारोबारी मौके कम होने से लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हो रही है। सनती शोबे की बहाली से ही इस मसले की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। कारोबारी तबके में ये तासर भी आम है कि अगर SROs जारी होंगे, बजट अहदाफ तब्दील होते रहेंगे, तो फिर जून में पेश किए गए बजट की अफादियत भी कम होगी। इसलिए बजट ऐसा पेश किया जाए जो कि साल भर के लिए कारआमद हो और कारोबारी तबका भी उसके मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ बना सके। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज़, लाहौर। मुल्की मईशत का ग्राफ ऊपर जाते जाते नीचे आने लगा। 2017 से 18 के दौरान मुल्क की मौशी तरक्की 6% तक रिकॉर्ड की गई, जो रवा माली साल 0.29% पर आ गई है। मईशत के ट्रैक पर चलती ट्रेन कब कब डी रेल हुई, जानते हैं हमाद आलम की रिपोर्ट में। मईशत की तरक्की की रफ्तार जो माली साल 2017-18 में 6% थी, इस माली साल 0.2% पर आ गई। सालों से रियल एस्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाने की हिम्मत न करने के बायस आज टैक्स का मजमूई पैदावार से तनासुब सिर्फ 6.7% रहे। टैक्स आमदन में और बेदरेक अखराजात से मईशत पर कर्जों का बोझ मुसलसल बढ़कर 30 मार्च 2023 तक 73,000 अरब रुपए के करीब आ गया। अखराजात में कर्जों की वापसी यानी डेट सर्विसिंग का बजट भी बढ़ रहा है और ये रवा माली साल के पहले 9 माह में 3,582 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गया। खदशा है कि माली साल के अख्ताम पर 5,400 अरब रुपए कर्जों की अदायगी की नजर हो जाएंगे।
ایک طرف قرضوں کی واپسی کا حجم بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری جانب محدود وسائل کی شکار حکومت عوامی فلاح کے منصوبوں کے بجٹ پر ہاتھ کھینچتی جا رہی ہے۔ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں مرکز پی ایس ڈی پی پر 292 ارب روپے ہی خرچ کر سکے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی صورتحال مایوس کن ہے۔ مالی سال 2017-18 میں اس کا حجم 4,990 ملین تھا اور اب رواں مالی سال جولائی تا اپریل کے دوران صرف $160 ملین ہی ملک کو بیرونی سرمایہ کاری کی مد میں حاصل ہوئے۔ روپیہ گراوٹ کا شکار ہے اور اوپن مارکیٹ میں اس مالی سال ٹرپل سینچری مکمل کر چکا ہے۔ ایک طرف روپیہ کمزور ہو رہا ہے تو دوسری جانب عوام کے لیے مہنگائی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ جولائی تا مئی 2023 مہنگائی کی رفتار 29% تک پہنچ گئی۔ لگژری آئٹمز پر ٹیکس میں اضافے کی خبروں سے صنف نازک کی پریشانیاں بھی عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اس بارے مزید بتائیں گی اسلام آباد سے حریم جدون۔ بجٹ میں لگژری آئٹمز پر ٹیکس بڑھنے کا امکان، خواتین کے سجنے سنورنے کے سامان کی قیمتیں بھی بھریں گی اڑان۔ بجٹ کے بعد مہنگائی میں مزید اضافے کی خبروں سے خواتین پریشان۔ خبر گرم ہے کہ بجٹ کے بعد میک اپ کے سامان ہوں یا شیمپو اور بیوٹی پارلر کریمیں سب ہوں گی مہنگی۔ ہیئر کلرز، ڈائرز اور امپورٹڈ کپڑوں تک ہر شے پر لگژری ٹیکس لگے گا۔ اور ان خبروں سے کم سن لڑکیاں ہوں یا خواتین، صنف نازک کا ہر فرد ہے پریشان۔ اتنا زیادہ کپڑوں کی پرائزز نہیں ہوتی جتنے ٹیکسز لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کپڑے لیٹ سپوز کوئی کرتا ہم لے رہے ہیں 2-3 ہزار کا تو اوپر 1,000-1,500 ٹیکس لگا ہوتا ہے، تو انہیں ایٹ لیسٹ ٹیکس کم کرنے چاہیے۔ کائنڈلی جو ہے ہمارے لحاظ سے تھوڑا بجٹ کم کریں کیونکہ ہم نے بھی آگے اس کو اویل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جا کے شاپنگ کرنی ہے تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہوگا۔ لڑکیاں تو لازمی ہے نا، لڑکیوں کا تو حسن ہی سب کچھ ہوتا ہے اوبیسلی، تو ہم تیار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں، اب یہ اس خوشی کو بھی ہم سے چھیننا چاہ رہے ہیں تو بھائی یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اچھا جو میک اپ ہے ان کو خریدنا چاہیے، اور جب میں نے ریسنٹلی جب خریدا ہے تو 60,000 تک کا مجھے پڑا ہے، تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ کچھ ٹیکسز اور کچھ چیزیں کم کریں تو ہمیں یہ ریزنیبل پڑ سکے۔ جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے طوفان نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے، وہیں خواتین کی پریشانی بھی بجا ہے۔ بناؤ سنگار کی شوقین لڑکیاں اس مہنگائی کے طوفان سے بچ گئیں تو ہی سجنا سورنا بھی ہوگا ممکن۔ خواتین کا کہنا ہے کہ کپڑے اور میک اپ تو بناؤ سنگار کا لازمی جز ہے، اگر کپڑوں اور کاسمیٹکس کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی تو ان کے لیے اپنے حسن کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کیمرہ مین مون عاقب کے ساتھ حریم جدون، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے خبر کی دنیا۔